journalism can never be silent. That is its greatest virtue and greatest fault. It must speak and speak immediately. While the echoes of wonder, the claims of triumph, and the signs of horror are still in air. With these words of Henry Anatole, I, Professor Kiran Bala, Dean School of Journalism and Mass Communication, K.R. Mangalam University, welcome all our viewers who are registered on Zoom and watching us live on Facebook all over the globe. When all the governments have a pressure of controlling the spread of COVID-19 pandemic, the need to provide accurate information has grown exponentially. But availability of that accurate information has become rare. The novel coronavirus, which appeared in 2019, and initially it didn't draw much attention from world leaders, it has since then infected more than 4 million people and claimed the lives of many people globally. In India, over 70,000 people have been infected and over 2,300 deaths have been reported. As the pandemic shows no sign of slowing down, keeping people informed about the spread of the disease, official government measures taken to control its spread, it has become the most important job of media. On the other hand, media consumers have become more information hungry. When we all are getting the information on single click on our mobile phones, I think it becomes important to understand how media persons are making us aware of whatever is happening around the globe. So, we have organized this panel discussion on journalism in COVID era. Three prominent media personalities have joined us in this discussion. The first panelist in our discussion is Mr. Hitesh Joshi. Mr. Joshi is an independent journalist and writer. He reports widely on current issues, mainly on climate change, environment, and energy. He is author of Bridge of the River, The Untold Story of the Kedarnath Disaster. It was published by Penguin India. The book is a harrowing account of 2013 Himalayan tragedy, which killed thousands of people. He was invited to Yale University, USA, to speak on this book. Over the last 10 years, Hitesh has consistently covered armed conflict between the Maoists and Indian state. Mr. Joshi is recipient of Ramnath Goenka Award twice in a row. I welcome you, Hitesh ji. Thank you so much. Thank you. Second panelist in our discussion is Mr. Neeraj Gupta. Neeraj is working with the Quint as executive editor of prominent media platform. He is among the first lot of journalists who started mobile journalism culture in India. Earlier, he worked with India's top news channels like Aaj Tak and IBN 7. He not only headed the metro team of Aaj Tak, but rose to become National Bureau Chief in IBN 7. His most challenging reportage includes 2019 general elections in Kashmir, year 2015, devastating earthquakes in Nepal, riots in Northeast, Mumbai blast, and Telangana clashes, which brought him accolades, not within the organization only, but outside the organization wherever he served. Neeraj has a penchant for reporting from ground zero. Extensively, he has traveled, he has done stories from Kashmir to Kanyakumari during elections or even otherwise. His news and current affairs digital show Katha Jor Garam can be seen on YouTube channels of the Quint and Quint Hindi. I welcome you, Neeraj. Thank you. Our third panelist, Priyanka, she has also joined us. I welcome you, Priyanka. Priyanka Dubey is a journalist based in Delhi. Her investigation reporting on social justice and human rights has won multiple international and national recognitions, which include the 2019 Chameli Devi Jain Award for Outstanding Women Journalist, the 2015 Knight International Journalism Award, the 2014 Kurt Schok Award in International Journalism, the 2013 Red Ink Award for Excellence in Indian Journalism, 2012
Press Council Indian Award for Excellence in Investigative Journalism, and the 2011 Ramnath Goenka Award for Excellence in Indian Journalism. She has written a wonderful book, No Nation for Women, reportage on rape from India, the world's largest democracy. It was published by Simon & Schuster, India in 2019. And she was awarded with a 3 times Ladli Media Award. So I welcome you, Priyanka, in this program. Thank you. आपको सुनाई आ रही है मेरी आवाज? Can you hear me? Yeah, it's very clear. ठीक है. Good. So, Hrideshji, first of all, I want to know from you. Earlier, we used to have journalists in the industry who were having, degrees from science, commerce, and economics. But now, in this present era, when so many educational institutes they are offering degree in journalism, does the degree matter while joining the industry? So it goes both ways, I believe. First of all, thank you very much for inviting me, and I welcome all the participants, my co-panelists, and all the people here present here. The question you asked, I think it plays both ways. I mean, if you have a degree, if you have you are actually, I would say very flatly, if you have a stamp on your biodata from a prestigious institute, it helps you. It jazz up your CV. But the thing is that only having a degree from somewhere, it doesn't take you very far. Every journalist should have some idealism in his life. What he wants to cover, how he wants to go about covering the subjects. Thankfully, I have 2 co-panelists who I know for a long time, and they both have been highly, motivated what they do for. So they will also add up, I believe, and I can say something on their behalf also, that once you have a degree, it can give you a foothold. It can help you getting a foothold. For example, P. Sainath, one of the most people inspiring personality in journalism, he comes from JNU, and he has got an economics background. But we have Arnab Goswami also, who has come from Oxford. So I won't say much, but these 2 things, tell you that how you groom your journalism and how you take it, in which direction you take it. Both has got admirers, both have got detractors, but journalism is not like an election. It is not like you are getting elected to hold a position of power. It is something you are trying, you have to, as again, I will quote P. Sainath. He said, if so-called mainstream media is covering top 5%, I will cover the bottom 5%, And there was a year when he spent more than 270 days of year in rural areas, right? So he was away from the limelight of cities and whatever was being called in the mainstream media. So these are the things a journalist has to realize, that a business reporting is as important as a rural reporting. A reporting on battery vehicles is as important. Reporting on climate change. So there are many areas who have they are naturally pitched against each other. And when these all aspiring journalists who are listening to us today, they will grow up, they will understand that when you cover a sector, you try to become sympathetic towards that sector also. Right? But, it is job of a journalist to look at the facts and always question himself while covering any subject. So on that matter, the question you ask, the degree becomes important, because when you have a degree, you must have got to must have been some prestigious institute, and you must have met some people, learned people out there. So these contexts help you when you go ahead. Some of the people remains a lifelong inspiration, but the ultimate inspiration you find from yourself. So I have known personally people who have not have any, who did not have a very good, flashy background,
academic background or degree on their under their belt, but they have done equally and sometimes much better than others. किरण, Yes, हाँ, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनके लिए मैं इस बात को आसान करूं तो आपकी डिग्री बेसिकली वो लिंक है। जैसे इस वेबिनार में शामिल होने के लिए आपको एक लिंक क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप क्या बोलते हैं, क्या सवाल पूछते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वो डिग्री आपका वो एक लिंक हो सकती है, वो एक पास हो सकती है एक अवार्ड फंक्शन में जाने का, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको परफॉर्म करना है वहां, उसके बाद वो डिग्री आपके खास काम नहीं आती है। और खास तौर पे ये जो डिजिटल इरा है, जब टेक्नोलॉजी ने, इस डिजिटल वर्ल्ड ने हमारी चीजों को इतना आसान और मुश्किल दोनों कर दिया है, तो उस मायने में ये जो डिग्री वाला फलसफा है, ये जो फिलॉसफी है डिग्री वाली, ये भी एक दुधारी तलवार जैसी हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि आपको हर जगह पे आजकल हर इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि एक डिग्रीधारी बच्चा उसके पास आए ज्वाइन करने के लिए, जर्नलिज्म ज्वाइन करने के लिए। तो हर जगह एक शर्त होती है, लेकिन मैं ये उदाहरण कई बार देता हूं कि मान लीजिए कि आजकल जब एक कोरोना आउटब्रेक है पूरी दुनिया में, और ऐसे वक्त में अगर बिहार की सरकार ये दावा करती है कि हमारे यहाँ सब कुछ सामान्य है, या हरियाणा की सरकार ये दावा करती है कि हमारे यहाँ सब कुछ सामान्य है और हमारे यहाँ तो बस चंद कोरोना के मरीज हैं, वो भी कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन उस वक्त पे एक नॉन जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड नॉन जर्नलिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल पे किसी गांव से एक रिपोर्ट डालता है, एक माई रिपोर्ट सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पे, और वो ये साबित करता है कि मेरे गांव में यहाँ पर 100 लोग बीमार हैं जिनको चेक करने वाला कोई नहीं है, ये कोरोना के मरीज है या नहीं है हमें नहीं पता है। तो ऐसे वक्त में जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो आम लोग हैं, वो उस चीफ मिनिस्टर की बात मानेंगे या उस रिपोर्ट की बात मानेंगे? तो एज ए जर्नलिस्ट अब नए जर्नलिस्ट के लिए ये बहुत चैलेंजिंग भी हो गया है। आपकी डिग्री जो है वो आपके लिए बस बहुत एक छोटी सी मदद है, एक छोटी सी मदद है, लेकिन अब इस डिजिटल इरा ने पूरी दुनिया को जर्नलिस्ट बना दिया है। पूरी दुनिया की सूचना क्रांति में हर जगह से जब खबरें आपके सामने आ रही हैं, तो एज ए जर्नलिस्ट, नए जर्नलिस्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ये अपने उस फील्ड में अलग साबित करना। जी मैं इसमें कुछ जोड़, हेलो, यस प्रियंका प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी इस बारे में। मैं आई एग्री विद बोथ ऑफ माय को पैनलिस्ट, जो उन्होंने कहा मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे इसमें ये बस जोड़ना है कि आई हैव हैड इन 5 years of journalism education, 3 years of graduation and 2 years of masters, and on the basis of my experience I can say that it was absolutely is a strong word, but more or less unnecessary. I think journalism degree, after doing 5 years of journalism education and getting very good marks, I was a gold medalist also in my university. I feel that I could have done better if I had done graduation, say for example in economics or history. What I feel is that after doing a regular education, if you do a 9 months or 10 months course to learn the technicalities of the profession, that will suffice. But spending 5 years, 3 years or 2 years of your life, I don't know how much, because journalism, what I have learned in my experience is that it kind of limits your because of the way journalism courses are structured in India, it kind of limits your exposure to things, and you do not end up reading as much as you should. What I feel is that if you want to become a journalist in your graduation and masters, you should read a lot. Should read like a crazy person, Manik. You should read a lot of history, a lot of sociology, a lot of literature, Hindi literature, English literature. बहुत सारा साहित्य आपको पढ़ना, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए, जिसका दायरा कई बार बहुत सीमित हो जाता है वो पत्रकारिता के कोर्सेज में। और अगर आप इकोनॉमिक्स या किसी और चीज में, अगर एक सॉलिड आर्ट्स में आपका फाउंडेशन और उसके बाद आप एजुकेशन पूरी खत्म करने के बाद अगर आप 9-10 महीने का भी एक कोर्स कर लें टेक्निकलिटीज के लिए किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से, जो आजकल होते हैं 10 महीने का डिप्लोमा, दैट शुड बी इनफ।
उसका कोर्स ये स्टैम्प और एक एंट्री पॉइंट के लिए है, एक एंट्री पॉइंट वाली जो बात कही गई है, मगर वो बहुत ही फ्लीकी चीज है, क्योंकि आपके अंदर क्या होता है वही आपको कैरी कर सकता है, और अंदर बहुत कुछ होना चाहिए। आजकल के जमाने में तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब ठहराव भी होना चाहिए और पैशन भी होना चाहिए और बहुत सारी ग्रेविटी, बहुत पढ़ना लिखना, तो वो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ, इट्स अ वेरी सेल्फ ग्रूमिंग प्रोफेशन, यू हैव टू बी योर ओन एनवायरमेंट एंड एजुकेट योरसेल्फ एवरी डे. Yes, Those are my 2 cents. Yeah, those are my 2 cents. So I might be absolutely wrong as well. because a few things, Priyanka, you have already talked about like skills that we require to be a journalist, irrespective of the fact whether we are having a degree or not. Even Neeraj has also talked about it, the kind of skills we require. अंदर जाकर आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है. But still, एक जो है कि innate quality and developing the skills. This is also very important while pursuing the course or while entering the job or while entering in this course. So other than reading, there are some other skills which are required. I'll ask from all my panelists. First of all, I'll ask Hridesh ji, what kind of skills students need to develop to enter in the industry, and then of course to survive in the industry. Yeah, good. Thank you so much for asking this question, because I am the practitioner of this. At least I am getting benefited at this point of time. I was all, through my career, I was a television journalist and never worked in print. मैंने कभी प्रिंट मीडिया में काम नहीं किया. मैंने शुरुआत ही 1998 में की थी, 97 में की थी, और टेलीविजन जर्नलिज्म में की थी. But I never stopped writing. Writing in means for television also you write, but I kept writing for newspapers. I kept writing for, when I was on NDTV, I was with NDTV. Then I was writing for Hindi and English both. I was writing on both the websites. Okay. And I then ultimately wrote some books also. So what Priyanka was telling and what Neeraj was telling, I was just adding to that. I'm just adding to that. You have to, what you said, innate skills. I don't think anything, with this mindset, someone should go to, newsroom, that people are there with innate skills. Everything you can acquire and develop. And the, zeal, you need zeal to learn that, right? We all have learned it. And you can fall in bad habits also. You have to know that also. A lot of unlearning also you have to do. So, मूल बात समझने की जो ये है कि आज की डेट में जिन जर्नलिस्ट को हम यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, या अगर मैं हल्की भाषा में कह सकूं प्रवचन दे रहे हैं, अगर उनको ये समझना है कि कैसे सरवाइव करना है, तो उनको सबसे पहले समझना होगा. अभी जब आप पूछेंगे जब ये ओपन अप होगा, तो हम कोविड के जो चैलेंजेस हैं उसके मुतालिक भी बात करेंगे. लेकिन उनको सबसे पहले ये समझना होगा कि उनको टेलीविजन, वीडियो, जिसे आप टेलीविजन कहना भी गलत है, वीडियो जो नीरज बता रहे थे, और जो पढ़ाई लिखाई की बात प्रियंका कर रही थी, अल्टीमेट डीप एंड कांस्टेंट हैबिट ऑफ रीडिंग, वोरेशियस रीडिंग. हर तरह की, आप स्टारडस्ट से लेके, आप क्रिकेट मैगजीन से लेके, आप सारी साइंस मैगजीन और सब कुछ पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए. लेकिन स्किल डेवलपमेंट की जहां तक बात है, वीडियो में आपको शूट से लेकर, मैं बहुत सामान्य बातें बता रहा हूँ, शूट से लेकर, एडिटिंग से लेकर, ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर, आपको सब कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए. बिकॉज इन टेलीविजन, इन दिस मीडियम, आपका बहुत पढ़ा लिखा और बहुत जानकार होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप सारी कंडीशंस में सर्वाइव कर सके. और मैं आखिर में खत्म करूंगा इसी बात को कहते हुए कि एज ए फ्रीलांसर, एनीवन हु हैज डेल्ट विद फ्रीलांसर्स will tell you it's very difficult to sustain financially. I am afloat today because I can speak and go and train people in such seminars. जैसे आज मैं आया हूँ यहाँ पर बात करने के लिए. I can write in Hindi, I can write in English, I can do multimedia, I can do print stories, I can do web stories. So you cannot think that मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ बस और इसी पे survive कर जाऊँगा. This demands not only to be all rounder, this also demands to be umpire. This also demands to sit dugout and be a watchful 12th man. So all these things you need to acquire, you need to develop, and this is perfectly possible. You don't need to worry about that. Yes, Neeraj, you want to? बिल्कुल, हृदेश ने कमोबेश सारी बातें कह दी हैं. मैं यही बताना चाहता हूं, जो खास तौर पर आज के यंग जर्नलिस्ट हैं, वैसे भी आज की तारीख में जो यंग जर्नलिस्ट हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो
हमारी जनरेशन से कहीं बहुत ज्यादा टेक सेवी हैं, वो अपना बहुत ज्यादा वक्त मोबाइल फोन पर बिताते हैं जो शायद हम किताबों में बिताते थे। तो उस नाते वो टेक्नोलॉजी के हमसे ज्यादा करीब हैं, लेकिन फिर भी एक जर्नलिस्ट को शायद एक ये गुमान हो जाता है, शायद ये खुशफहमी हो जाती है कि वो एक ज्ञान की गठरी अपने कंधों पर जो लेके चल रहा है, इस पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो उसका बहुत सम्मान करे, उसकी वो बहुत इज्जत करे। लेकिन ये आज की तारीख में शायद समाज की ये जिम्मेदारी नहीं है। आपको मैं बार बार, चूंकि मैं बहुत करीब 5 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूं, तो मैं इस मीडिया के बारे में ज्यादा बात करता हूं। आपको आज की तारीख में, अब ये वो पुराना जमाना नहीं है कि जब एक शहर से उठ के नीरज, हृदेश या प्रियंका जैसे लोग आए और आके उन्होंने बीबीसी, एनडीटीवी या आज तक जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, जहां पर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मिल रहा था और वहां पर हमने अपने आप को उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सेट कर लिया। आज की तारीख में लोग एक मोबाइल चैनल और एक सेल्फी स्टिक के साथ, एक मोबाइल फोन और एक सेल्फी स्टिक के साथ अपने पूरे चैनल चला रहे हैं, और उन चैनल्स को देखकर, उनका इन्फ्लुएंस देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये एक आदमी, 2 आदमी या 4 लोगों की टीम चला रही है। ऐसे आप जाकर सर्च कीजिएगा इस वेबिनार के बाद, अपने गूगल सर्च कीजिएगा, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स, शेयर चैट इन्फ्लुएंसर्स। आप देखेंगे कि वो बहुत ही कहीं गांव देहात और गली कूचों में बैठे हुए लोग हैं, जो अपने बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ अपना वो एक माध्यम, एक चैनल चला रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और वो दे आर इन्फ्लुएंसर्स। उनके स्टेट्स की सरकारें उन्हें सुनती हैं, विदेश में बैठे हुए लोग उन्हें सुनते हैं इस इलाके का ज्ञान लेने के लिए। पंजाब के मोगा जैसे या नवा शहर जैसे एक देहात में बैठे हुए एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की बात कनाडा में बैठे हुए पंजाबी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह के हवाले से जो बातें आएंगी वो सच नहीं होंगी। वो हमारी जो जमीन उस गांव में है, उस जमीन का अगले साल क्या होने वाला है, ये हमें मुख्यमंत्री के चैनल से नहीं पता चलेगा, हमें ये इस परविंदर सिंह के चैनल से पता चलेगा। तो ये आप इसलिए अपनी, और स्टूडेंट लाइफ होती है वो सबसे बड़ा मौका होता है। स्टूडेंट लाइफ के बाद जब आप नौकरी, तब आपके पास उतना वक्त नहीं होता है, उसकी अपनी मजबूरियां शुरू हो जाती हैं, उसके अपने बंधन शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ सबसे बढ़िया मौका है आपके पास, जब आप अपनी इन स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अपने टारगेट सेट कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो जमाना था जब आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते थे तो अपना रिज्यूमे भेजते थे। आज की तारीख में आपसे पूछते हैं कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं, आपका ट्विटर हैंडल है, आपका फेसबुक चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप टिकटॉक पर हैं, आप शेयर चैट पर हैं, आप हेलो पर हैं, और अगर इन सब प्लेटफॉर्म्स पर हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है वहां पर अपने पोस्ट डालने की, आपके व्यूअर्स कितने हैं, आपके लाइक्स कितने हैं, ये सब आज की तारीख में आपसे पूछा जाता है। और ना सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बल्कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पर, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आप जाएंगे तो शायद आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, और अगर टाइम्स नाउ में जाएंगे तब भी शायद आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको आपके स्किल्स अपनी स्टूडेंट लाइफ में जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं आपको बढ़ानी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि इस वेबिनार में और कुछ हम लोगों के इस प्रवचन से जो हृदेश ने कहा आपको हासिल हो ना हो, लेकिन एक बात हासिल जरूर कीजिएगा कि इस वेबिनार के बाद अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ाने के लिए काम शुरू कीजिएगा। आज के दिन को उसका एक माइलस्टोन बनाइएगा। हेलो, यस प्रियंका प्लीज। मैं थोड़ी सी एक दो लाइनें बस जोड़ना चाहती थी। बहुत सारा जो भी जरूरी था वो तो कह दिया हृदेश जी ने और नीरज जी ने, सारी इंपॉर्टेंट बातें। मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत अजीब सा और वैलिड रहा है। मैगजीन, पहले अखबार में से मैंने शुरू किया, फिर मैगजीन में बहुत लंबा वक्फा बताया तहलका में, फिर कैरेवैन में जो एक मंथली बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, अलग रिगर है उसका, कई बार हम रिवाइज करते हैं ड्राफ्ट्स, और बहुत ही अलग जगह थी कैरेवैन। और उसके बाद फ्रीलांस मैंने सस्टेन किया है 2-2.5 साल अपना सब कुछ दिल्ली में रहकर, और उसके बाद अभी एकदम अलग मीडियम में बीबीसी में, जिसमें ब्रॉडकास्ट, डिजिटल, टीवी और शॉर्ट हैंड्स और सब कुछ मैं करती हूँ, मतलब बड़े वीडियोस और बिल्कुल अलग सारी सब चीजों में मस्त हूँ। तो मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? जी, आ रही है लाउड एंड क्लियर प्रियंका। अच्छा, तो मैं बस उसमें ये जोड़ना चाह रही थी कि इसमें इम्पोर्टेंट ये है, हमें वेब फुटप्रिंट्स और ये सारी चीजें बिल्कुल सही है जो इन्होंने कही है, बट आफ्टर ऑल इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कंटेंट। व्हाट आर यू राइटिंग?
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, हम ऊब जाते हैं अपनी अपनी वॉल स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि इतने सारा उसमें कंटेंट आ रहा है। तो आफ्टर ऑल अभी भी आप देखेंगे कि जो कंटेंट स्टैंड आउट करता है उस कंटेंट में दो चीजें, एक तो लेखन का रियाज, आपका कोई भी मीडियम हो, प्रिंट हो, मैगजीन का मीडियम हो, या फिर आप बहुत लंबा लॉन्ग फॉर्म डिजिटल में लॉन्ग फॉर्म लिख रहे हो, या फिर आप राइट डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, या छोटी सी 3 मिनट की क्लिप बना रहे हो, उसमें भी अगर आपको एक मार्क छोड़ना है तो राइटिंग का रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग फिर से ख्याल से आएगी, और दिमाग पे जोर की कंटेंट आपका स्टैंड आउट कैसे करे, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा मार्केट इज वेरी क्राउडेड। इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, आपका कंटेंट जो उसकी भाषा है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक गहराई, उसमें आप कुछ कह पाए, कुछ होल्ड कर पाए लोगों को, कुछ पैशन हो उसमें। एक तो ये चीज हो गई, बोलने का रियाज है, लिखने का रियाज है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और उसके साथ में जो मैं बार बार ये बात कहना चाह रही थी कि इसीलिए मतलब इसकी प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस, छोटी राइटिंग, 3 मिनट की न्यूज स्टोरी के लिए राइटिंग, अगर 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के लिए अलग राइटिंग होगी, मगर बेसिक स्किल राइटिंग की वही है, एक नैरेटिव स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है वही है। और लॉन्ग फॉर्म को भी ऐसा मत समझिए कि अगर 10 मिनट की कोई डॉक्यूमेंट्री या 4000 वर्ड का कोई पीस है तो आजकल वो वैसे नहीं पब्लिश प्रोड्यूस हो रहा है जैसे कि 10 साल पहले प्रोड्यूस हो रहा था। लॉन्ग फॉर्म डिजिटल भी जो फॉर्मेट्स हैं उसमें बहुत इनोवेशन हुए हैं, उसमें मैप्स लगते हैं, इंटरैक्टिव बनाया जाता है उसको, उसमें Q&A इस्तेमाल किए जाते हैं, शॉर्ट हैंड के नए फॉर्मेट आ गए हैं जिसमें बहुत बड़ी तस्वीरें लगती हैं। तो हम हर तरह के कंटेंट को, हर तरह के कंटेंट के लिए मार्केट में लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं, जो उसको कंज्यूम करते हैं। और इस हर तरह के कंटेंट में, लेकिन कोई भी कंटेंट हो, भले ही वो 2 मिनट की न्यूज स्टोरी हो या वो 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हो, वो चलेगा तभी जब उसमें मतलब कुछ बात होगी या उसमें कुछ उसका एक सोल होगा, उसकी एक आत्मा होगी। पंच नहीं होगा पंच एक रिडक्टिव टर्म है, मैं कह रही हूँ कि सोल होना चाहिए उसमें, सोल मतलब उसमें वो एक मतलब वो स्टैंड आउट कर पाए, तो उस लेखन के रियाज से आएगा। तो ये बहुत अच्छा वक्त है प्रैक्टिस करने का जब आप स्कूल स्टूडेंट हो, तो ये राइटिंग की प्रैक्टिस और अपने डिजिटल वेब जो उनके फुटप्रिंट्स हैं उसको इनरिच करके उसको स्टैंड आउट कैसे करे, वो मतलब इट शुड स्टैंड आउट अमंग 1000 वीडियोस। वो इतनी उसमें बात जो कही गई हो वो आपको मूव करे और उसमें कुछ गहराई हो, उसके लिए इंसान में भी गहराई हो। जी प्रियंका, in fact you have won so many awards for your investigative journalism, and you have written a wonderful book also. So my point here is, like, there are many girl students who join us in this university to be a journalist. So does in this profession, does it matter being a woman? Do people face hurdles, or it's conducive to be a female? So what kind of issues generally we face on gender basis, I would like to ask. मुझे इंडस्ट्री में तो ऐसी कोई I never faced, what language should I use, English और हिंदी, आप लोग किसमें ज्यादा feasible हैं आप? नहीं दोनों। अच्छा, तो मुझे ऐसी कोई यहाँ आने के बाद मेरे सबसे बड़े वॉर्स जो थे वो डोमेस्टिक फ्रंट पे थे, जब मैं घर से निकल रही थी, और घर के लेवल पे बहुत बड़े वॉर्स थे। तो उसमें लोगों को समझाना, बिकॉज हमारे घर में मतलब ज्यादातर लोग, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन पर्सन जो पहली हूँ जो बाहर निकल के और काम कर रही है, तो किसी को पता नहीं था ये क्या होता है। तो वो ज्यादा वो इतने बड़े और इतने मुश्किल युद्ध थे कि उनको लड़ने के बाद बाकी लगा कि बाकी की दुनिया तो ऑयस्टर है। मतलब क्योंकि जब आप इंटरनल वॉर्स आपकी ज्यादा तकलीफ भी देते हैं, उन चीजों को उनको आप ब्रेव करके अगर उनसे आप बाहर निकल के आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे तो मतलब मैं तैयारी थी कि कोई अपेक्षा ही नहीं थी कि बहुत आपको स्नेह प्रेम मिलने वाला है, जैसा है वैसा चल। तो आप आई वॉज रेडी फॉर द वर्स्ट। तो कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि नेगेटिव में जा रहा है, मगर कभी भी इस जेंडर आइडेंटिटी को मैंने ज्यादा दिमाग पे लाया नहीं। ये चीज है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि लोग ज्यादा मतलब कि आपको स्टीरियोटाइप करने की कोशिश करी जा रही है। का सिग्नल ब्रेक हुआ है शायद। अब आ रही है आवाज आपको? अच्छा, हम सब लोग फ्रीज हो गए हैं। नहीं, आ रही है। कैन यू हियर मी नाउ? यस, मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, मैं बस ये बोल रही थी कि कई बार ऐसा आपको दो लेवल पे लगता है। एक तो ये लगता है कि बाकी जो मेंटर्स है वो आपको मतलब ज्यादा ही लोग मतलब पेट्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या ज्यादा इन्फेंटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दूसरे लेवल पे ऐसा लगता है कि
लोग स्टीरियोटाइप कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ये फीलिंग्स आ सकती हैं और मुश्किल होती है, मगर इसको दिमाग में ज्यादा रखना नहीं चाहिए। मतलब 200% अपना पूरे पैशन के साथ स्टोरी के ऊपर लगना चाहिए। मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ इस बारे में कि क्या है। अगर आप किसी दिन फील्ड पर हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक दिन आपको 34 किलोमीटर अंदर ट्रैक करना है जंगल में, एक दिन किया था मैंने ऐसा, मतलब कई बार सब लोग करते हैं। हृदय इज अ वेटरन ऑफ वॉकिंग इन फॉरेस्ट, ही इज सिटिंग विद अस। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब हम लोग, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उसमें ये नहीं रो सकते कि मैं आई एम ऑन माय सेकंड डे और ऑफ माय पीरियड और मैं क्या करूं। मतलब इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, यू हैव टू बी। एक मैं हमेशा, मेरे टीचर थे स्कूल में, जर्नलिज्म स्कूल में, जो हमसे कहते थे कि एक जो जर्नलिस्ट है वो वन मैन आर्मी की तरह काम करता है। मतलब आई ऑलवेज थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ सोल्जर व्हेन आई एम ऑन ग्राउंड। तो फिर उसमें ज्यादा इतना रोना सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। Add one thing, though the question is directed to women journalist, लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड करूंगा जो इन्होंने मुझे याद दिलाया कि बस्तर में कितनी भी कवर करते समय रिपोर्टिंग मैंने देखा, जो वहाँ महिला जर्नलिस्ट आती थी, मुझे लगता था कि वो कई बार उनको देख के खुद पर शर्म आती थी। उनकी जो ऊर्जा का जो स्तर है और जो कई बार चलने में हमसे आगे, काम करने में हमसे आगे, और जो इंटेलेक्ट लेवल है उस पर हमसे पहले रिएक्ट करना है स्टोरी में। और अभी का जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है, अगर आपको वुमेन जर्नलिस्ट के काम को देखना है, तो वो कोविड की रिपोर्टिंग है। You see the health reporters, all women reporters, breaking stories, getting investigations done on ground. The women are all over, so they have just outshined the men in this particular, COVID, this thing. And when you ask about COVID, I'll speak more about, how students should go about it. But this one line I wanted to join what Priyanka said. अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो इसको लेकर तो मैं आई वुड लव टू आंसर फ्रॉम गर्ल्स। नहीं प्रियंका, एक्चुअली मेरा भी अपना एक्सपीरियंस एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन यही रहा है कि जब हम काम करना चाह रहे हैं तो करना चाह रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर आई एम अ मेल और अ फीमेल। लेकिन जनरली पेरेंट्स जब आते हैं एडमिशन के लिए और उनकी इस तरह की क्वेरीज होती हैं कि लड़की है तो क्या करेंगे, इसलिए मैं आपसे नहीं, वो घर वाले, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि घर का जो फ्रंट है वो सबसे बड़ा फ्रंट है, बाकी तो दुनिया की फ्रंट अब सारे, तो घर के फ्रंट पे बहुत निर्मम होना पड़ता है, थोड़ा दिल मजबूत, और वो एक बड़ी लड़ाई है ना, वो तो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। मतलब सबने लड़ी है, वो लड़नी पड़ती है, कोई रास्ता नहीं। घर का फ्रंट सबसे मुश्किल, मेरे लिए तो सबसे मुश्किल फ्रंट था वो उसमें मुझे, क्योंकि निजी स्पेस होता है तो तकलीफ भी ज्यादा होती है, बिकॉज पीपल हु आर क्लोज टू यू कैन हर्ट यू मोर। तो I hope your parents are listening to all this. अरे वो उनको पता है ये चीज, मैं कहती हूँ अब तो चीजें बदल गई हैं, अब उनको लगता है हाँ मतलब वाह, लेकिन बच्चों के मन से वो चीज, उसकी तकलीफ कभी शुरू वाली जो है वो जाती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जब उनको जरूरत थी तब किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अब जब अब तो सारी दुनिया ही फिर उसमें क्या है, इट्स लाइक फिर प्यासा के ज्यादा फैन हो जाता है इंसान, कागज के फूल टाइप्स। तो वो है। इनफैक्ट नीरज समहाउ शायद उनका सिग्नल नहीं रहा, नीरज दिखाई नहीं। हाँ हम लोग वो रीजॉइन कर सकते हैं वो, अगर टेक्निकल टीम उनको बैक एंड पे ले ले तो कैन रीजॉइन पॉसिबल। कनेक्ट करके देखती हूँ। दूसरी बात जो एक बड़ी इस टाइम पर निकल कर आ रही है वो है जो फेक न्यूज ड्यू टू दिस बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कोविड। मतलब जिसको कुछ आता है, नहीं पता है, मतलब हम सभी डॉक्टर बन चुके हैं, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनसंख्या, सब डॉक्टर हैं, सबके पास अपने अपने उपाय हैं, इलाज हैं, और बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, मॉर्फिंग, वो सारी चीजें तो जो टेक्निकल पार्ट है वो हम लोग देखते ही हैं। सो इस सिचुएशन के अंदर ऑल्दो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप्स करा रहे हैं, हाउ टू हैंडल दिस, हाउ टू फाइंड आउट वेदर द न्यूज यू आर गेटिंग ऑन योर सोशल मीडिया इज फेक और इज जेन्युइन, वो हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स नहीं हैं, दूसरी जगह से आए हैं, तो उनके लिए हृदय जी और प्रियंका आप बताएंगे कि कैसे पता लगाएं या कैसे समझें। बहुत अगर हम थोड़े शब्दों में कुछ उन्हें समझा सकते हैं कि ये फेक न्यूज है, जेन्युइन न्यूज है, फॉरवर्ड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे इजाजत मांग लूं, अगर एक की वक्त जो है मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा हो सकता है आगे कम हो, तो कोविड पर रिपोर्टिंग कैसे हो, क्या हम इसको भी शामिल करते हैं? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों बातों का मिला जुला एक छोटा उत्तर देता हूँ। ये कि हालांकि कोविड पर रिपोर्टिंग कैसे हो इसका छोटा उत्तर देना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो फेक न्यूज वाली बात आपने कही, सबसे जो परेशान करने वाली बात है कि फेक न्यूज जो है ना वो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया फैला रहा है, तो थोड़ा सा हमें टीवी देखने को की नजर को बदलना पड़ेगा। फॉर मतलब आई एम नॉट
सेइंग दिस विद एनी कोई किसी ऊंचे उस पर चढ़ के नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बात, लेकिन मैं टेलीविजन न्यूज नहीं देखता बहुत वक्त से, और अखबार भी मेरे यहाँ बहुत कम आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अखबारों के और कुछ टीवी चैनलों के नाम न लें तो सबसे ज्यादा फेक न्यूज वहीं से आ रही है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पर कुछ पार्टी के प्रवक्ताओं के अलावा जो है वो टीवी के कई सारे एंकर्स हैं, वो भी फेक न्यूज पेडल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज है तो इससे हम लड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक जिम्मेदार मतलब एक व्यक्ति के तौर पर अगर आप सोचते हैं तो पहले तो चीजों को वेरीफाई करना हमें सीखना चाहिए। और there are many technologies which are available now and there are many fact check sites now. Fact check sites are also some fake sites. उसमें भी एक संकट है कि वो जो फेक है उसको असली करके बता रहे हैं, तो संकट तो बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी एक वेबसाइट का मैं नाम लूंगा, ऑल्ट न्यूज का, जिसका क्योंकि सरकार ने भी नाम लिया था अभी हाल में और कहा था कि उनकी वेबसाइट से चेक कीजिए कि वो जो है लगातार कर रहे हैं। तो ये थोड़ी चीज है जो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी और अपने आंख कान खुले रखने पड़ेंगे, और अच्छी वेबसाइट्स को ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा। और कुछ टाइम बाद जब आप इस बिजनेस में होते हैं तो आपको पता भी चलने लगता है कि ये खबर सच हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरी चीज जो कोविड पर रिपोर्टिंग कैसे हो, मैं इसको इसलिए भी जोड़ देना चाहता हूँ कि बाद में शायद वक्त उतना न रहे बताने के लिए। सारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि देखिए जर्नलिस्ट का काम जो है वो एडवर्सेरियल है, वो पावर के साथ उसको टकराना उसका काम है। जैसे किसी ने शायद चैट में क्वेश्चन भी लिखा था, व्हाट इज जर्नलिज्म? जर्नलिज्म इज यू नो ब्रिंगिंग आउट द फैक्ट्स, बट द फैक्ट शुड बी जो अकाउंटेबल बनाए ताकतवर को। अब मैं रोज ये फैक्ट लेके नहीं आ सकता कि जो एक कोई पार्टी जिसका कोई एमपी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेके बोल दूंगा ना, मैं रोज कहूँ कि मायावती जी की पार्टी जो है बहुत उसमें करप्शन हो गया, उसमें गड़बड़ हो गई, ये इस तरह से नाम लेके। अब उस पार्टी का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है इस वक्त, मतलब पार्लियामेंट में उनके लोग नहीं है, वो कमजोर पार्टी है। तो हमारा काम है फैक्ट्स लाना, हर स्पेक्ट्रम के फैक्ट्स लाना, लेकिन प्राइमरीली हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन को चैलेंज करना है। हमें ये बताना है कि ये इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहा, हमें बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गड़बड़ी हो रही है, हमें बताना है कि होम मिनिस्ट्री में ये हो रहा है, हमें बताना है कि डिफेंस सेक्टर में ये प्रॉब्लम चल रही है, हमें बताना है एनवायरमेंटल सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है। तो इन फैक्ट्स को लाना जर्नलिज्म है। अब जैसे कोविड वाली स्थिति पैदा होगी तो ये आप दुनिया जहान के जो जानकार हैं उनके अगर अभी आप फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो ये बता रहे हैं कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो जो भी सरकार में होता है, किसी भी देश में हो अक्रॉस द ग्लोब, वो मजबूत होता है और वो ज्यादा ताकत अपनी बढ़ाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अभी कितने सारे एनवायरमेंटल लॉ सरकार कमजोर करने के तरीके अपना रही है, वो आपको मालूम है। सरकार अभी लेबर लॉज के साथ क्या कर रही है मालूम है। आप उस पर अगर ताली बजा रहे हैं पत्रकार मेन स्ट्रीम के, ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके टेलीविजन स्क्रीन तक, तो उससे हमें बचने की जरूरत है। ये जर्नलिज्म है, इसको आप सीख, अगर मेरे साथ मतलब आई विल बी एज अपफ्रंट एज आई कैन बी। तो ये चीजें उन्हें समझने की जरूरत है। दूसरा, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि आने वाले वक्त में और ताकतवर होंगी सरकारें। तो आपका काम, अगर वास्तव में आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, एक तो पीआर डिपार्टमेंट है, अगर पीआर डिपार्टमेंट हैंडल करना है तो ठीक है किसी भी जगह का, लेकिन अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आपको सोचना होगा फिर आप कैसे आगे लाएंगे, और उसके लिए आपका अपने आप में भरोसा होना और आपका लगातार अपने को सुधारते जाना, वो बहुत जरूरी है। प्रियंका, आप इतना काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी कर रहे हैं, तो ये इश्यूज तो सभी के साथ निकल कर आ रहे हैं कि मैंने पीछे एक स्टोरी देखी जहां ट्विटर पर किसी जर्नलिस्ट ने शेयर किया हुआ था, 1100 लोगों ने रीट्वीट किया किसी स्टोरी को और बाद में पता चला कि वो फेक स्टोरी है। सो एज अ जर्नलिस्ट कभी कभी ये चैलेंज हम लोग भी फेस करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि फेक न्यूज है या नहीं। सो मेरे ख्याल में जो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ अपना भी सोचकर देखें कि वेदर वट एवर वी आर गेटिंग इट इज बिलीवेबल और नॉट बिलीवेबल। पहली बात तो ये देखें कि यूज योर ऑन सेंसेस। उसके बाद जितनी फैक्ट चेकिंग साइट्स और ऑल्ट न्यूज जो जैसे हरदेश जी ने बताया, उसके बाद उन पर जाएं और हम देखकर पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये हृदय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने बहुत एग्जॉस्टिवली उसको समझाया, उसमें बहुत कुछ ऐड करने की गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं एक दो छोटी सी चीजें बस ये बताना चाहूंगी कि एक जो बेसिक नेचर होता है किसी भी जर्नलिस्ट का, वो क्वेश्चन करने का होना चाहिए, सस्पेशन का ना, एक चुटकी भर शंका हमेशा आपके स्वभाव में मिली होनी चाहिए किसी भी चीज पे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अविश्वास और विश्वास के बीच में मतलब एकदम ही जाके एकदम ही ट्रस्ट नहीं कर ले, थोड़ा सा डाउट एक
सस्पेशन होना चाहिए, आप उसको क्रॉस चेक करें, पढ़ें। और डीप फेक्स भी होने लगे आजकल, एक नया फिनोमेना है जिसमें बहुत ध्यान से अच्छे से एक मतलब क्या कहते हैं उसको, मैन्युफैक्चर करा जाता है कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, डीप फेक कहते हैं उसको, ताकि वो इतना इंटीग्रेटली वीव्ड होता है कि उसको पकड़ना मुश्किल होता है उस फेक को। तो अगर आप भी जाएंगे, जैसे कि ICFJ है, ICFJ जैसी वेबसाइट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट करके, और भी इस वो ICFJ में अगर आप ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो वहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज करके उनके कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कई बार ICFJ को आप लोगों को वो भी करना चाहिए, मतलब सब्सक्राइब करना चाहिए। और भी कई सारे जो लड़कियां हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन IWMF को कर सकती हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जर्नलिस्ट को, ये अपना कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये लोग इनके वेबसाइट्स पे जो ये जो जर्नलिज्म के लिए ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल काम करती हैं, इनके वेबसाइट्स पे, और अगर आप गूगल भी करेंगे तो रिसोर्सेज होते हैं हाउ यू कैन चेक if a news is fake news or not। उन्होंने छोटे छोटे वेबिनार्स या छोटे छोटे राइटअप्स, और उसके साथ में टूल किट होते हैं, टूल किट उन्होंने अपलोड किए हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये न्यूज फेक है या नहीं है। उसके कुछ उसके मार्कर्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, ऐसे कुछ उसके संकेतक बिंदु बनाए हुए हैं, कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए हैं कि कैसे चेक करना है उसको। एक तो ये चीज कर सकते हैं, और दूसरा देखिए इंडिया में भी अगर आप गूगल करेंगे तो वेबसाइट्स में लिस्ट पड़ी हुई है, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स वेयर यू कैन चेक कि ये न्यूज फेक है नहीं। क्योंकि कई बार बहुत पुराने वीडियोस लगाकर वापस अपलोड कर दिया था, 4 साल पुराने, भावनाओं को इंसाइट करने के लिए। तो पहले तो शुरू ही करना चाहिए मिसट्रस्ट से, मतलब सस्पिशन से। अगर कोई बहुत ऐसा लग रहा है कि इवोकेटिव चीज आ रही है जो कि एकदम ही ज्यादा हाइपर करने के लिए, इमोशंस को चार्ज करने के उद्देश्य से लाई जा रही है, तो उस पर शुरू ही आप थोड़ा सा शंका से करें कि इसका क्या उद्देश्य है। और फिर कई बार डीप फेक्स होते हैं, तो उन चीजों को चेक करने के लिए आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे आपको टूल्स। ये वेलकम बैक, ये मिल गए, वापस आ गए। हाँ जी। सो नीरज, की बात कर रहे थे। हाँ, तो मैंने पुरानी आपकी बातचीत नहीं सुनी, तो शायद दोहराव हो सकता है, थोड़ा रिपीटिशन हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने आखिरी हिस्सा सुना प्रियंका की बातचीत का, तो ये बिल्कुल आज के इस दौर में जब ये आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही सारे सर्टिफिकेट बांट रही है राष्ट्रभक्ति के, तो ऐसी सूरत में आपको हर चीज को, हर मैसेज को शंका के नजरिए से देखना चाहिए। मुझसे कई बार ये लोग पूछते हैं कि आप इतनी नेगेटिव बात क्यों करते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गलत हो सकता है, तो उसमें उतने ही % चांसेस है कि ये सही भी हो सकता है, तो हम इसका पॉजिटिव हिस्सा क्यों ना देखें। तो मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं कि जब आप बारिश के मौसम में अपना स्कूटर या साइकिल लेके घर से निकलते हैं, तो आप पानी भरे हुए हर गड्ढे को इस नजरिए से देखते हैं कि इसमें मेरी साइकिल डूब सकती है। वो गड्ढे में नहीं भी डूब सकती है, लेकिन उस वक्त आपको ये डर रहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये कितना गहरा गड्ढा है, और अगर मैंने इसमें से अपना पहिया साइकिल का निकाला तो मुझे डूबने का खतरा है। तो ये वेबकूफ जो है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो सोशल मीडिया पे पूरा फॉरवर्ड का पूरा एनवायरनमेंट है, ये बारिश का वही मौसम है। यहाँ पे आपको हर गड्ढे को यही मान के चलना पड़ेगा कि ये गड्ढा इतना गहरा है जिसमें हम डूब भी सकते हैं। आप उसकी तफ्तीश कीजिए, पड़ताल कीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें नहीं डूबेंगे, तो आप उसके भीतर से गुजर जाइए, वो अलग बात है। लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक है जिसका हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पता नहीं लगता है। समाज में नफरत फैलाने के नजरिए से, दो कम्युनिटीज के बीच में दुराव बढ़ाने के नजरिए से, आपस में एक दूसरे पर शक शुबा बढ़ाने के नजरिए से, ये एक बहुत ही बड़े जहर का काम कर रहा है। और ऐसे हजारों उदाहरण, ऐसी हजारों मिसाल हम हर रोज बेसिस पे देख रहे हैं। और खास तौर पे जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, ये इत्तेफाक की बात है कि इस सरकार में पिछले 6 साल में लगातार इवेंट्स आते जा रहे हैं। ये पता नहीं क्यों ये कैसा इत्तेफाक है, कभी वो कोरोना आ जाता है, कभी वो कश्मीर आ जाता है, कभी CAA आ जाता है। ये फुल ऑफ इवेंट्स है ये सरकार। तो वेबकूफ के लिए, मैं वेबकूफ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमने बेवकूफ की टर्म पे बनाया है। क्विंट का ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये जो भी कोई इवेंट होता है, वो किसी भी तरह का इवेंट हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, तो वो सोशल मीडिया फेक न्यूज के लिए एक फर्टाइल लैंड का काम करता है। उस वक्त पे ये फेक न्यूज जो है वो सबसे ज्यादा नर्चर करती है
किसी भी इवेंट की आड़ में, तो उस इवेंट में बहुत सारे सच होते हैं, जिन सच का जामा पहनाकर आपको झूठ बताया जाता है। आपको लगता है कि जब तबलीगी जमात के निजामुद्दीन में एक कॉन्फ्रेंस होने की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी ने कोरोना फैलाया है, जब ये बात सही है, जब ये बात सारा मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है, तो जब आपके व्हाट्सएप पर यह आता है कि आपके पड़ोस में रहने वाला मुस्लिम भी आपका दुश्मन है, तो आप उस पर यकीन करने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये खास तौर पे चूंकि अगर हम ये मान के चलें कि इस वेबिनार में लोग हिस्सा जो ले रहे हैं वो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। आपको न सिर्फ खुद इस बात को समझना है, बल्कि आपको अपने आसपास के लोगों को भी इस बात को समझाना है कि ये फेक न्यूज बहुत ही बड़ा जहर है जो हमारे समाज में घुल रहा है, और इसके इतने ज्यादा दूरगामी और इतने ज्यादा खतरनाक इफेक्ट्स हैं, इतने ज्यादा खतरनाक प्रभाव हैं जो हमें शायद बाद में पता लगेंगे। ये इस टेक्नोलॉजी का एक भयावह चेहरा है। मतलब वो जो महानगरों में होता है ना कि बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतों, 5 स्टार होटल के पीछे एक झुग्गी झोपड़ी भी होती है जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। तो ये वही हिस्सा है इस सोशल मीडिया की चकाचौंध दुनिया का। तो इसे लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक टेक्निकल बात है, प्रियंका कुछ बता रही थी कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आजकल बहुत सारे मेन मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं। फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी ये बड़ा चैलेंज है। आजकल तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो बाकी हो, उनके अंदर भी ये एक बहुत बड़ी चर्निंग चल रही है कि अगर ये फेक न्यूज हमारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ये फेक न्यूज लोगों के बीच में, समाज के बीच में फैलाई जाएगी, तो शायद कोई दिन ऐसा आएगा जब लोग हमारे प्लेटफॉर्म्स पर ही यकीन करना बंद कर देंगे। तो वो लोग भी इसे लेकर बहुत माथापच्ची कर रहे हैं, सिर फुटव्वल कर रहे हैं। तो ज्यादा सावधानी, ज्यादा जरूरत इस बात की है आप निजी तौर पर इसे लेकर सावधान रहें। अगर आप निजी तौर पर इसे लेकर सावधान रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो आपको सपोर्ट करेगा कि आप इस फेक न्यूज के इस मॉन्स्टर को हमारे बीच से दूर कर पाएं। जी, मैं एक बात कहूंगा बस सिर्फ, उसके बाद आप आगे बढ़ा लीजिएगा। उसमें सिर्फ रूपकों की बात कह रहा हूँ। नीरज, मैं आपकी सारी बातों से सहमत होते हुए, भावना से सहमत होते हुए कहूंगा कि जो आपने एक रूपक का इस्तेमाल किया, ये किसी आलीशान बिल्डिंग के पीछे की झुग्गी नहीं है। ये किसी आलीशान बिल्डिंग के पीछे का वो टॉक्सिक नाला है जो किसी ऐसे कारखाने रहा है जो लगातार एनवायरमेंटल लॉज का उल्लंघन कर रहा है और वो जहर जमीन में भेज रहा है। सो इट इज नॉट अबाउट अ पुअर झुग्गी। आई मीन कंप्लीटली विद नीरज, बट जस्ट करेक्टिंग दिस रूपक, है ना? बिल्कुल फैला रहे हैं वो टॉक्सिसिटी। और दूसरी बात में जोड़ना चाहूंगा, जर्नलिज्म क्या है ये बता। जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है। आजकल कई तरीके से चीजों को बैलेंस किया जाता है कि अगर एक आदमी कहे कि बाहर बरसात हो रही है और दूसरा आदमी कहे कि बाहर बरसात नहीं हो रही है, तो उसने कहा कि बाहर बरसात हो रही है, उसने कहा बाहर बरसात नहीं हो रही है, तो ये खत्म। आवर जॉब इज टू ओपन द विंडो एंड सी इफ इट इज रेनिंग और नॉट। इफ इट इज नॉट रेनिंग, वी हैव टू सो नो इट इज नॉट रेनिंग, दिस गाय इज लाइंग, ये झूठ बोल रहा है। और इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको, बहुत छोटा सा। ताकत को चैलेंज करना जर्नलिस्ट की अकेली कैपिटल है। उसको लेकर ही वो जीता है, चाहे उसका पैसा ना हो। जब CNN न्यूज ने के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि CNN इज मेलाइनिंग द इमेज ऑफ द कंट्री, CNN इस देश की इमेज को खराब कर रहा है, तो CNN ने जाके उसके खिलाफ खुश करने वाली स्टोरियां चलाना शुरू नहीं किया। उन्होंने ट्वीट किया, उसके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि इट इज नॉट आवर ब्लडी जॉब टू टेक केयर ऑफ द इमेज ऑफ दिस कंट्री, दिस इज योर जॉब, आवर जॉब इज टू रिपोर्ट फैक्ट्स, यू नो। और तो ये स्थिति है कि अगर कोई ताकतवर आपको चैलेंज करता है, उसका आपका काम ये नहीं है कि यू नो गेट बॉग डाउन, बट यू शुड रिवर्ट बैक विद फैक्ट्स। हमारा काम फैक्ट्स बताना है। हमारा काम ये बताना नहीं है कि देश की इमेज खराब हो रही है, देश की इमेज हो रही है। हम अगर सच्चे देशभक्त हैं तो हमारा काम फैक्ट्स को सामने लाना है। सरकार है वो देश नहीं है, ये समझाना भी है लोगों को। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। We are observing in media also that we talk about irresponsible behavior of journalists. So एक जो मीडिया पर जो सवालिया निशान लगते रहे हैं, जो मैं कहूँगी, तो यहाँ as a student how to make that balance
कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जहां काम कर रहे हैं आप उसके साथ जुड़े भी रहें, आप लोगों को इन्फॉर्म भी करते रहें और साथ में लोगों को आप सही इंफॉर्मेशन भी देते रहें एज अ मीडिया पर्सन. सो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस? Unfortunately, it is not easy to do that in some places, but but it is not that difficult also. ऑर्गेनाइजेशन को भी हम ऐसे मोनोलिथिक तरीके से देखते हैं, भले ही उनका एक चेहरा हर ऑर्गेनाइजेशन का बनता जा रहा है, पर एक मोनोलिथिक नहीं, उसमें कई तरह के लोग होंगे. आपका जो सबसे जो आइडियल व्यक्ति होगा, हो सकता है वो ऑफिस के अंदर बहुत नाकामयाब आदमी हो, जो कहीं कोने में बैठा रहता हो लाइब्रेरी के पास, आप उससे इंस्पिरेशन लेते हो. तो ऐसा नहीं है कि आप अपना काम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं और जितना पॉसिबल है. पर आपकी बात की भावना को मैं समझता हूं कि हर आदमी के पास आज की डेट में प्रैक्टिकली बात किया जाए तो एक आर्थिक सस्टेनेबिलिटी का दबाव होता है. EMI सबको भरनी है, परिवार सबको चलाना है. तो लेकिन जहां तक आप अपनी इंडिविजुअल इंटीग्रिटी है, मुझे नहीं लगता कि उस पर जब आंच आती है तो उसके बाद आदमी चुप रह सकता है. लेकिन ये सब बात की बातें, हमें जर्नलिस्ट को जो अभी नए फ्रेश जर्नलिस्ट हैं, उनके दिमाग में सारी बातें के आने के बजाय उनको ये बताना चाहिए कि अपनी जर्नलिस्टिक स्किल्स को कैसे होन करें. और उसको अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो बातें कही वो सुननी चाहिए कि कैसे वो अलग अलग तरीके से अपने आप को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, क्योंकि मैंने भी ये सोचा है काम करते समय, देखा है कि मेरे लिए, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, एनवायरमेंटल साइंस में PG किया मैंने, तो वो चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन मेरे को समझ में आता है कि आज पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे पर्सपेक्टिव देती है. हाँ, तो ये चीजें पढ़ना, अपनी स्किल्स को होन करना और ये सोचना, इस पॉजिटिव माइंडसेट से इस इंडस्ट्री, जैसे वर्ड आपने यूज किया, इस काम में जाना कि यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं, हर तरह से टैलेंटेड लोग हैं जो ऊर्जा बिखेरते चलते हैं चारों ओर, उनमें बहुत जबरदस्त टैलेंट है. इस पॉजिटिव माइंडसेट से जाना और एक प्राइड के साथ जाना. अगर आप अपने अंदर उस सम्मान की आत्मसम्मान की भावना से अगर नहीं घुसते हैं इसके अंदर, तो फिर आपके लिए मुश्किल है. लेकिन अगर वो आत्मसम्मान के साथ और मेहनत करने की ललक के साथ आप जा रहे हैं, तो एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड. सो देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो कोई डरने की उसमें जरूरत है. जी प्रियंका जी. मैं एक छोटी सी बात, जी ने बहुत मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इंस्पायरिंग टू लिसन टू बोथ ऑफ देम. मैं एक छोटी सी चीज बस ऐड करना चाह रही थी. मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ. आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ. ये बहुत ही पर्सनल जर्नी होती है सबके लिए, टू ईच वन टू हिज और हर ओन. तो लेकिन मेरा जो ये रहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था. एट द एज ऑफ 21 आई स्टार्टेड वर्किंग एज एक्टिव रिपोर्टर, और अभी मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 10 साल बस 1-2 महीने में हो ही जाएंगे. तो इन दिस 1 decade मैंने जो सीखा है, मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर कभी भी ये इच्छा नहीं थी, अभी भी नहीं है, अब हर किसी की हो सकती है. बहुत मतलब अगर आपको मीडिया में अब उसमें बहुत ज्यादा करना है, आजकल लोग इस नोशन को चैलेंज करते हैं बहुत, लेकिन मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ उस लिहाज से. तो मतलब मैं बहुत ज्यादा कभी ये नहीं सोचा कि ये इस तरह की इच्छाएं नहीं थी कि कुछ बहुत बड़ा आपको घर बनाना है, प्रॉपर्टी या कुछ बहुत उस तरह की एक बहुत स्टेबल लाइफ, कभी वो इच्छा ही नहीं थी. बहुत ज्यादा पर्सनल सैक्रिफाइस होता है इसमें, शुरू के सालों में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस होता है. मुझे लगता है मैंने बहुत सारे सालों तक तो दिवाली होली मनाई नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं किसी ऐसी बड़ी रिपोर्ट के बीच में होती थी, और कोई भी बड़ी स्टोरी एक एक्सटेंडेड अजीब सी एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा टाइम होता है जैसे आप किसी बड़ी स्टोरी के बीच में आप उसको छोड़ नहीं सकते. इट्स लाइक अ प्रेगनेंसी, बीच में उसको छोड़ा नहीं है, तो आपको फिनिश करना पड़ता है एंड तक. तो बहुत सारे बार आपके बहुत सारे दिस प्रोफेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पर्सनल सैक्रिफाइस, फैमिली, मतलब बहुत सारे तीज त्योहार, बहुत कुछ छूटता है और वो छोड़ना होता है. और आपको बहुत ज्यादा अगर पैसे की शुरू में बहुत इच्छा है, मेरे को तो बाद में भी नहीं है, लेकिन अगर शुरू के सालों में बहुत ज्यादा इच्छा है तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कितना सूटेबल होगा. टू ईच वन टू हिज ओन. लेकिन मतलब ये बहुत ज्यादा बहुत स्टेबल जिंदगी की इच्छा है बहुत, तो फिर बैंकर बनना चाहिए या किसी और चीज में जाना. बहुत सारे, क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट होते हैं बड़े स्किल्ड लोग होते हैं, ये कहीं भी जाएंगे ना, मुझे लगता है अगर मैं बैंकिंग में उसमें तो बहुत अच्छी बैंकर बनती मैं, क्योंकि हम बहुत मल्टी टैलेंटेड बड़े स्किल्ड लोग होते हैं, क्योंकि हम बहुत सी चीज सीखते हैं. लेकिन इस पेशे में अगर है तो बहुत स्टेबल लाइफ तो शुरू में वैसी होती नहीं है, सैक्रिफाइस बहुत होता है. और उसके अलावा एक और चीज, अपने आप को इम्प्रूव बहुत करना. अगर आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री में आप कैसे खड़े होंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, काम कैसे मिलेगा, तो आप अपने ऊपर काम करिए. 2 भाषाओं में
हर किसी को निपुण होने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम अंग्रेजी एक जरूरी चीज है, और एक अपनी जो नेटिव भाषा है, अपने आप को मल्टीलिंगुअल बनाए, दोनों भाषाओं में फ्लुएंटली काम कर सके, मल्टीटास्किंग, एक अच्छा एक वन मैन आर्मी की तरह खुद को डेवलप करें, जो रिपोर्ट करके प्रोड्यूस करके एक फाइनल प्रोडक्ट दे सके, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, हिंदी अंग्रेजी में, और रेडियो टीवी, मतलब डिजिटल ऑडियो, लिखना विखना सारी चीजें कर सके, उस पर आप अपने आप को करें और पिच करें। बहुत सारा काम करने वाले अच्छे लोगों की बहुत कमी है, अच्छी रिपोर्ट्स लोग नहीं कर रहे हैं, और अच्छी रिपोर्ट्स की हमेशा दरकार रहती है। जब मैं फ्रीलांस करती थी, मुझे शुरू में टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं आपको सेटअप होने में, मगर फिर बहुत काम मिलता है, और काम की कोई ऐसा नहीं कि कमी, आप अपने रास्ते, और लेकिन छोड़ना भी पड़ता है। मतलब कहने का मेरा कुल मतलब ये कि आपको चीजें छोड़ने की गट्स होनी चाहिए अपने पेट में, कि आप अगर नहीं पसंद आ रहा है, या अगर मैंने चीजें बहुत छोड़ी हैं जिंदगी में, मैंने बहुत चुनकर काम किया है, बहुत सारी जगहों पे काम किया ही नहीं, तो उसकी कीमत भी चुकाई है कि 5,000 के कमरे में रही हूँ बहुत लंबे वक्त तक, जब लेकिन वो शुरू का वक्त था। तो आपको चीजें छोड़ने का साहस करना चाहिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, और आप बहुत काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता है, मगर कहीं भी अपने आप को मार के, जमीर को बेचकर कुछ भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिससे आप अग्री नहीं करते। उसके लिए तो फिर आप बैंकर ही बन जाते, या कहीं कुछ और बन जाते तो ज्यादा अच्छा था। मतलब ऑलवेज अपने इनर सेल्फ को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात कि मैंने किसी सीनियर जर्नलिस्ट के फेसबुक पोस्ट पे पढ़ा था, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के वक्त लिखा था कि रिटायर होते वक्त उन्होंने ये बात कही कि मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि मैंने जिंदगी भर जो चाहा वो लिखा, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जिंदगी भर मैंने जो नहीं चाहा वो नहीं लिखा। बड़ी बात आप इस बात को समझने की कोशिश, हमारे ज्यादातर वक्त पे हमारे फ्रस्ट्रेशन इस बात पे होते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप इसी तस्वीर को इस नजरिए से अगर देखें, जो मैं नहीं चाह रहा हूं वो ना लिखूं, तो भी मैं अपनी आत्मा को, अपने जमीर को बहुत हद तक बचा सकता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि सरकार की पिछलग्गू हो, वो चाहती हो कि उनका हर रिपोर्टर सरकार की बहुत तारीफ करे, है, और मैं इस बात पर कसमसाता रहूं कि मैं सरकार के खिलाफ लिखना चाह रहा हूं और मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो मेरी वो कसमसाहट अपनी जगह है। लेकिन मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए सिर्फ सरकार की तारीफ ना लिखूं, भले ही उनके खिलाफ ना लिख पाऊं, लेकिन उनकी तारीफ ना लिखूं और सिर्फ तथ्य पेश करता रहूं, तो भी मुझे लगता है कि मैं अपने जमीर को बचा सकता हूं। तो इसे तस्वीर को बस दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। बैलेंस आप बहुत ही अच्छे तरीके से बचा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। जी बिल्कुल सही कहा नीरज। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑल्दो हमारे पास ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर बॉक्स में मैं देख सकती हूँ, फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने अपने पैनलिस्ट से सिर्फ 1 घंटे का समय मांगा था और वो समय हम लोग ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक और सेशन करने की जरूरत है, इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप सभी फिर से हमारे साथ जुड़ पाएं, किसी एक दिन हम फिर से रखें वेबिनार और फिर अपने ऑडियंस से हम लोग कनेक्ट कर पाएं, दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर अस। तो I'll be ending the session. Thank you everybody, all the participants, all the viewers and worthy panelists. आपने आकर बहुत सारी ऐसी बातें बताई प्रियंका, खासकर जब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, मुझे याद है मुझे भी घर वालों ने ये कहकर भेजा था, पहली नौकरी के लिए जा रही हो, नौकरी के पैसे मत मांगना, तुम्हें कोई सिखा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। So with this attitude, I think we should join this profession, and I would like to request all my students and those who are the viewers, students, those who want to join this profession, those who want to take admission in this course, come with open mindset, work on your skills, and then sky is the limit for you. With this note, I thanks all my panelists, all the members and viewers, and my faculty member. I thanks technical support. Thank you so much. Thank you. Thank you. All the best. Thank Take you. care. Thank you. All the best.